Hello everyone, welcome back to our channel Mission CPF Hub. So today we'll be discussing chapter 4 of class 10th NCERT, that is carbon and its compounds. So as you all know that carbon is a nonmetal and it has atomic number of 6 and atomic weight of 12U. Atomic mass unit, 12U means atomic mass unit. Okay. So in this chapter we will be discussing majorly its compounds and its property. So as we have all discussed in previous classes what are ionic bonds, today we'll discuss why carbon is so special and why it is not able for carbon to form ionic bonds. So I will remind you about ionic bond. What are ionic bonds? In ionic bond, a positive A element and B element, they share their they either gain or they lose their electrons in order to get stable. ठीक है? I mean, if it has extra electrons it will give it to this atom, and this atom might be deficient of electrons, and it would gain electrons from the A atom and it would get stable, and this also would get stable. So this is basically what we called as ionic bonds, and now we'll be discussing about uh, another special type of bonds that are known as covalent bonds. So first of all, let us see why carbon needs to form another type of bond, why it is not able for carbon to form ionic bond. So see, as I have told you uh, that carbon has atomic number of 6 and atomic mass of 12 atomic mass unit. So if we draw electronic configuration of carbon, so it would be 2 in K shell and 4 in L shell. So as you all know that in order to get to be stable, the last shell must be fully filled, and you all know that in L shell we can fill 8 electrons. So either it has to, it has to gain 4 electrons. Okay, it would gain 4 electrons and it would become electronegative, or it would lose 4 electrons and it would become electropositive. Okay, if it would lose 4 electrons it would be having only 4 electrons, sorry, 2 electrons with it. दैट टू मेक इट स्टेबल, बिकॉज उसका जो के शेल है वो फुली फिल्ड हो जाएगा उस केस में, और 4 गेन कर लेगा तो एल शेल फुली फिल्ड हो जाएगा. सो दीज आर द टू वेज बाय विच इट कुड गेट स्टेबल. सो लेट्स सपोज if it has to gain 4 electrons and to form itself as anions. So anions are basically what you would say electronegative compounds, and cations are electropositive. Okay, and we will discuss about cation and anion in deep in next chapter, because the next chapter deals with cation and anions more often. Okay, so see, if I want to, you know laboratory I want to prepare it as anion by providing it with 4 more electrons. So मैं लैब में क्या करूंगा, मतलब प्रैक्टिकली बाय ह्यूमंस हम क्या करेंगे, हम लैब में इसको 4 इलेक्ट्रॉन देने की ट्राई करेंगे. ठीक है, जब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेगा तो वी वुड बी नीडिंग एनर्जी. ठीक है, सेकेंड हम देंगे तो फिर एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, वो एनर्जी के बारे में आप जब हम 11th चैप्टर के 11th क्लास के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे तब आप हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होगी दैट वुड बी इवन हायर. ठीक है, थर्ड के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज, you could say, practically impossible to prepare in labs. So that is why it is very much difficult for us to give, for not for us, but for carbon to gain 4 electrons in laboratory. Next we'll see if it has to lose 4 electrons to in order to become a cation, or you could say electropositive atom. So if we have to, by ourselves हम इसके इलेक्ट्रॉन्स लूज कराना चाहते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम आउट करेंगे. ठीक है, उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, जिस की हेल्प से
हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। तो फर्स्ट के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी कुछ रहेगी, सेकंड के लिए और भी हाई रहेगी, थर्ड के लिए वेरी हाई रहेगी। और इन दैट केस सिमिलर सिचुएशन आएगी, हम फिर से वो जो एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे लैब्स में। ठीक है, तो हमारे लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना या 4 इलेक्ट्रॉन लूज कराना कार्बन का मतलब नियर टू इम्पॉसिबल होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए कार्बन क्या करता है, कार्बन फॉर्म करता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आर मोर ऑफ शेयरेबल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई चीज है और मेरे पास कोई चीज है, ठीक है, तो मैं आपको अपनी चीज नहीं दे रहा कि आप जाके घर ले आके यूज करो उसको, और आपके पास कोई चीज है तो आप मुझे घर ले आने के लिए नहीं दे रहे। आप मेरे आइटम को यूज करोगे। ओके, जो मेरे पास जो भी चीज है आप वो उस चीज को यूज करोगे, और जो आपके पास चीज होगी उसे मैं यूज करूंगा। ओके, एंड जब हम दोनों को इन चीजों की जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, देन इन दैट केस वी बोथ विल बी स्टेबल। ओके, सो यही कोवेलेंट बॉन्ड्स का केस होता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है कि हम कोई भी एटम जो होता है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन को ना ही गेन करता है, ठीक है, मतलब या ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास लेगा नहीं या फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स को उसको देगा नहीं। क्या करेंगे, इससे अच्छा ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेंगे, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को ये ए पर्सन भी यूज करेगा और ये बी पर्सन भी यूज करेगा। ठीक है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये बी भी यूज करेगा और ये भी यूज करेगा। ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कार्बन ही है। ठीक है, एक कंपाउंड होता है CH4, मीथेन कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है देखिए, मीथेन के केस में ना एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन होते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेबल होने के लिए एक और चाहिए। कार्बन की बात करें तो कार्बन का 6 है, इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको स्टेबल होने के लिए 4 और चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, देखिए ये एक कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन का एक एटम है, इसके पास एक है, इसके पास एक है, एटम मीन सॉरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैसे कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ मान लीजिए, जस्ट मिनट सॉरी, ओके, सो सी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन सपोज करिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये क्या करेगा, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स का ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। हाइड्रोजन की जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन को ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसको ये ले लेगा, इसको यहाँ से ये ले लेगा और इसको यहाँ से ये ले लेगा। ठीक है, तो कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन से स्टेबल होने के लिए तो उसने 4 हाइड्रोजन से एक एक एटम उनके इलेक्ट्रॉन उनके शेयर कर लिए, मतलब रख लिए अपने पास। और सिमिलरली सेम ऐसे हाइड्रोजन के साथ हुआ, हाइड्रोजन को एक ही चाहिए था, तो वो 4 जो कार्बन के एटम थे, सॉरी इलेक्ट्रॉन थे, उन चारों में से एक हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है, एक ये हाइड्रोजन लेगा, एक ये हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन। चारों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन को रख के खुद में स्टेबल हो जाएंगे। तो ये तरीका होता है कोवलेंट बॉन्ड्स का। इसमें हम फुली किसी इलेक्ट्रॉन को किसी को देते नहीं है और ना ही फुली किसी का इलेक्ट्रॉन छीनते हैं। हम बस क्या करते हैं, उन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट जो है वो भी इसको यूज करेगा और दूसरा एलिमेंट है वो भी इसको यूज करेगा। ठीक है, ये जो बॉन्ड्स होती हैं ये खाली कार्बन के केस में नहीं होती, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मतलब बहुत कॉमन बॉन्ड्स है। ठीक है, बट हाँ एक बात याद रखिएगा, कोवलेंट बॉन्ड्स आर वीक एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स आर मच स्ट्रॉन्गर। ठीक है, because they are held by strong electrostatic force. So we are here on our next topic, that is allotropes of carbon. So before this topic, let's understand what is allotropy. ठीक है, one element can occur in different forms. ठीक है, it could be two, it could be three, it could be more than three. ठीक है, and what I mean by forms, I mean it could be different state. Okay,
इट कुड बी लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ एग्जिस्ट कर रहा हो, अलग अलग रूप में, स्ट्रक्चर में, ठीक है, शेप में, इन सब चीजों में एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। एट एक ही एटम की बात कर रहा हूं मैं, एक ही एटम अलग अलग तरीके से जब एग्जिस्ट करता है तो उसे हम एलोट्रॉपी कहते हैं, ठीक है। तो कार्बन के आपके सिलेबस में 3 एलोट्रोप दे रखे हैं, वैसे इससे एक ज्यादा भी है, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। उसका नाम ग्राफीन है। ग्राफीन इज ऑल्सो जस्ट सेकेंड, ग्राफीन इज ऑल्सो एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ओके। उसके अलावा यहाँ पे 3 एलोट्रोप की बात की गई है। एक आपका यहाँ पे ग्रेफाइट है, और एक आपका डायमंड है, और एक इसका बकमिंस्टर फुलरेन CFS-60 है। देखिए, इन तीनों की प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कैसे इन तीनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। एक ही एटम के होने के बाद भी तीनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तीनों की इंपॉर्टेंस अलग है हमारी सोसाइटी के अंदर। जैसे देखिए, जो हमारा डायमंड है, डायमंड एक 3D स्ट्रक्चर देता है। इसका हर एक एटम ना, एक सॉरी, एक हर एक एटम जो है वो 4 एटम के साथ बॉन्डेड होगा। तो याद रखिएगा, डायमंड के केस में चार एक कार्बन एटम 4 एटम के साथ बॉन्डेड होगा, ग्रेफाइट के अंदर 3 के साथ होगा, ठीक है। तो इसी इसी स्ट्रक्चरिंग की वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है बहुत डिफरेंट होती है। डायमंड आपको पता है बहुत शाइनिंग है, ग्रेफाइट डल होता है। ग्रेफाइट आपका पेंसिल की जो लेड लेड पेंसिल आती है आप यूज करते हैं, जो उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। डायमंड्स आपको पता है, आपको ऑर्नामेंट्स के अंदर यूज किया जाता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, शाइनिंग है, और बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर है। वहीं पर ग्रेफाइट इतना सॉलिड नहीं होता, कंपेरेटिवली सॉफ्ट होता है डायमंड से। तो देखिए, थोड़ा सा ही स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस आने से कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया इसके अंदर, ठीक है। डायमंड देखिए कैसे बनता है। जनरली हम इसमें प्योर कार्बन को हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के ऊपर सब्जेक्ट करते हैं, जिस केस में ये डायमंड बन के निकलता है। देखिए, एक और चीज याद रखिएगा कि जो डायमंड, वो आपका कंडक्टर नहीं है, मतलब इंसुलेटर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, बट वहीं पे आपका जो ग्रेफाइट है वो एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, ठीक है। देखिए, इसी से रिलेटेड हमारे कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हैं, वो देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यस। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, दैट्स करेक्ट बिकॉज ग्रेफाइट इज नॉन मेटल। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, दैट्स करेक्ट, अभी हमने पढ़ा। ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट आल्सो इज करेक्ट बिकॉज ये भी पढ़ा हमने भी। ग्रेफाइट हैज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये देखिए हमने पढ़ा था, ग्रेफाइट का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होता, ग्रेफाइट का हेक्सागोनल होता है। टेट्राहेड्रल क्या मतलब क्या होता है, एक हेड 3 हेड से और जुड़ा हो, सॉरी 4 हेड से जुड़ा हो, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर डायमंड का मिलता है, इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये देखिए, ये टेट्राहेड्रल है, ये सिंगल हेड था, ये जुड़ा हुआ है, देखिए एक साथ 3 हेड के साथ, 3D में देखे तो 4 हेड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कार्बन। फॉर्म ऑफ कार्बन का मतलब है कि एलोट्रोप कौन सा नहीं है कार्बन का, ये बताना है बस हमें बेसिकली। तो मैंने आपको देखिए, अभी हमने डिस्कस किए थे, ग्राफीन मैंने आपको बताया था, ग्राफीन है एक एक्स्ट्रा में जो बताया था आपको। सेकंड ग्रेफाइट है, ये भी हमने पढ़ा। फुलरीन है, ये भी हमने पढ़ा था। क्वार्ट्ज नहीं है, क्वार्ट्ज बेसिकली सिलिकॉन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तब फॉर्म होता है, तो इट इज नॉट एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एंड ऑप्शन डी वुड बी आंसर। देखिए लास्ट एक ये और है एलोट्रोपी से, which of the following is not true for the form of carbon known as diamond. It is harder than graphite. Yes, it is true. It is harder than graphite. It contains the same percentage of carbon as graphite. I'll tell you about this later on. Let's move to the next option.
it is a better electric conductor than graphite. As you all know, it is not a better electric conductor than graphite. ठीक है? It has sorry, ऑप्शन सी वुड बी आंसर बिकॉज ये ग्रेफाइट से बेटर कंडक्टर नहीं, ग्रेफाइट इज अ बेटर कंडक्टर देन डायमंड, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट एंड दैट्स व्हाट दे वर आस्किंग फॉर. Fourth option है, it has different carbon to carbon distance in all direction. Yes, it is true. And इसको समझने के लिए आपको क्लास 11th का एक चैप्टर है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे जब हमें पता लगेगा कि बॉन्ड लेंथ की क्या होती है. ठीक है, बॉन्ड स्पेसिंग क्या होती है, वहां से आपको पता लगेगा. और सेकंड जो ऑप्शन था, इट कंटेन्स द सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन एज ग्रेफाइट, तो हाँ, दिस इज वी वुड नॉट से एग्जैक्टली द सेम बट यस अप्रोक्सीमेटली द सेम. ओके, जो कार्बन का कॉम्पोजिशन है वो सेम होता है. देखिए, कार्बन एक ही जगह से मिलता है, बट जहां पे कार्बन में क्या होता है कि एक कार्बन चार कार्बन के साथ मिल जाता है, वहां डायमंड बन जाता है. जहां तीन में मिलता है वहां ग्रेफाइट बन जाता है. इनिशियली दोनों के अंदर कार्बन का परसेंटेज सेम रहता है. यहाँ पे ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाए करेक्ट. देखिए, एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डायमंड. ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू फोर अदर कार्बन एटम. सेम ने पढ़ा था, हाँ वो जुड़ा हुआ था. थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स इज फॉर्म्ड, ये भी पढ़ा था हमने कि डायमंड इज 3D इन शेप स्ट्रक्चर. इट इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल्स. देखिए, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज जो डायमंड है वो इतना शार्प होता है कि इससे हम और टूल्स को शार्प करने के लिए शार्प करने के लिए हेल्प लेते हैं. इससे हम इसको ग्लास इंडस्ट्री में यूज किया जाता है. ठीक है, अब रेजर सबको पता होंगे जो घिसने के काम आते हैं जनरली, कि घिसने से वो दूसरी चीजों को शार्प करते हैं. आपने देखा होगा ऐसे टूल्स मैकेनिक्स के पास पड़े होते हैं. फोर्थ है, इट कैन बी यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट. देखिए, लुब्रिकेंट क्या होता है, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं. तो देखिए, लुब्रिकेंट के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये बहुत हार्ड मटेरियल है. लुब्रिकेंट के लिए हम वो मटेरियल्स को यूज करते हैं जो इनिशियली बहुत सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, सॉफ्ट होते हैं ताकि वो दूसरी जगह से फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, हमारे मटेरियल को सॉफ्टनिंग और प्रोवाइड कर सके. ठीक है, तो दिस वुड बी योर आंसर बिकॉज दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. So moving forward, let's discuss the next topic. So this topic says that carbon has a versatile nature. Versatile means different nature. So why it is versatile? So it is versatile because of two of its properties. One is known as catenation and other is known as tetravalency. So what is catenation? Catenation is a property in by which carbon can form thousands and millions of compounds just because of its uh, small size. Okay, so because of its small size, it is able to form bond with numerous other atoms, and its compound are widely found all around the world. It can form sorry first of all, it forms covalent bonds. So covalent bonds are widely seen in other compounds and atoms as well. And besides it, yeah, just that's it. So because of its small size, it is able to form compounds with every other element. So that's why it has more number of elements, sorry, compounds than any other element. And what is tetravalency? Tetra means four and valency means valence electron. So it has capability of sharing four of its valence electron. So it is a tetravalent compound. So because of this property, it is versatile because uh, the ability to share their four electron is rarely seen in any other element. So what do you mean by organic compound? Organic compound are compound formed by carbon besides carbides, oxides, carbonate, hydrogen carbonate. Okay, these are salts. And they said all these compounds, every other element, compound of carbon is studied under organic compounds. So next topic is saturated and unsaturated carbon compounds. So what is saturated and unsaturated carbon compounds? Okay. So see, carbon can form bonds in two ways. Okay, either it would form saturated compound, either it would form unsaturated carbon compound.
सो व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड? देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, दूसरे एलिमेंट के साथ। मतलब क्या है कि एक टाइम पर, जैसे ये देखिए ये कार्बन हाइड्रोजन था, कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक बार में कार्बन का एक एटम सिर्फ एक ही अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज सिंगल बॉन्ड्स। एंड अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। इस केस में क्या होता है, देखिए देखते हैं नीचे, देखिए यहां ऐसा होता है कि कार का एक एटम एक बार में एक जगह पर एक से ज्यादा एटम्स को शेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बार में ये एक कार्बन के साथ दो एटम शेयर कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल बॉन्ड। और अगर ये तीन करता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड आती है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में, ठीक है। और जो सिंगल बॉन्ड होती है सैचुरेटेड में होती है। सैचुरेटेड मतलब जमा हुआ, जो फिक्स हो और स्टेबल। सैचुरेटेड आर मोर स्टेबल, अनसैचुरेटेड आर लेस स्टेबल। देखिए कार्बन, ये देखिए स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स बोलते हैं, क्योंकि ये कार्बन को बनाने का तरीका है। जरूरी नहीं आप हाइड्रोजन को यहाँ रख रहे हो, आप इसको यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। तो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ फॉर्मिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। These are known as structural polymers because you can make any number of carbon compound structure. It could be in chains, it could be in branches, it could be in rings. So yes, so depending on the number of atoms present in a compound, compounds of carbon are classified in following ways. So let's see. So if the compound has one carbon atom, then it is known as methane. If it has two, then ethane. If it has three, then propane. If it has four, then butane. If it has five, then pentane. If it has six, then hexane. If it has seven, then septane, eight, octane, and so on. So these are structural isomers. These examples shows us that how we can form different carbon structures. See, this is an important compound of carbon because it has equal number of carbon and hydrogen atoms. So you have to remember this in mind, because this question could be asked that which carbon compound has equal number of carbon and hydrogen atoms. Its name is known as benzene, and its formula is C6H6. So next we will be doing homologous. So before doing homologous series, let's see what are hydrocarbons. So basically the compounds of hydrogen and carbons are known as hydrocarbons. So these are functional groups. देखिए functional group में आपको पढ़ना क्या, देखो मैं आपको exam specific बताता हूँ. And when I'm saying exam specific, इसका मतलब ये नहीं कि वो exam में आएगा, but I want to you guys make sure that आप conceptual भी सब चीजें पढ़ें. मैं आपको देखो कंसेप्ट हर चीज पढ़ाऊंगा, बट प्रैक्टिस करना आपके अपने हाथ में. इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू विन एनी गेम. सो यू नीड टू प्रैक्टिस. क्वेश्चंस इसमें है एनसीईआरटी में, अगर आप वो भी करते हो तो आई थिंक दैट वुड हेल्प यू in attempting the question that would be asked by UPSC. So let's see what are functional group. So see, as I've told you that the hydrocarbons are the compounds of hydrogen and carbon. Let's suppose we are talking about methane, that is CH4, in which there is one carbon and four hydrogen. Okay, so this is hydrogen. Okay, so these are four hydrogen that are present in this compound. So if we delete one of its hydrogen and replace it by another atom, और यू कुड से ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है. फंक्शनल ग्रुप को ग्रुप ऑफ एटम ही कहा जाता है. वैसे किसी भी हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे, इससे, इससे या इससे, ठीक है. हाँ, उसके लिए कंडीशन होती है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या कंडीशन होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो आपको यहाँ पर रिप्लेस करना है ना एटम इस हाइड्रोजन की जगह पे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो वैलेंसी वो भी 1 होनी चाहिए. मतलब उसको स्टेबल होने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, वो भी 1 होने चाहिए. अगर हुए तो फिर हम उसमें कई ऐसे फंक्शनल ग्रुप में जो ऐड नहीं कर सकते, जैसे कि OH नहीं कर सकते, ठीक है. इन दिस केस, आई एम नॉट सेइंग इन ऑल केस, ठीक है. तो यू हैव टू कीप इन माइंड द वैलेंसी, ठीक है. आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी. डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन अपने 5 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है. तो 5 की इसको जरूरत नहीं है, ये गलत है, ठीक है. कार्बन सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है ऑन मैक्स, ठीक है. तो अगर मैं कैसे काउंट करता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे 1, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, हर एक बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है.
ठीक है। तो जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, सपोज करिए मैं कीटोन ग्रुप लगाना चाहता हूँ कार्बन के किसी भी कंपाउंड के अंदर। जैसे सपोज करिए मैं लगाता हूँ, मैं प्रोपेन के अंदर लगा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन है, 1 2 3, ये बीच में एक हमारा ऑक्सीजन लगा हुआ है। देखिए हर एक कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होना जरूरी है। ठीक है, इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 4, इसको भी 4। अब देखिए जो बीच वाला सेंटर वाला कार्बन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन तो अपने ऑक्सीजन का शेयर कर लिए, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, तो सेंटर वाली की वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अब बात करते हैं इस वाले कार्बन की, तो इसका सिर्फ इसकी एक बॉन्ड बन रही है, मतलब क्या है, सिर्फ इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, जबकि इसको 3 और करने। तो हम यहाँ पे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पर एक और, नीचे भी एक और। सेम हम इस कार्बन के साथ भी करेंगे, ये वाला जो है इसके साथ भी हम 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक। ठीक है, तो ये बैलेंस सेटिस्फाई करना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है। फंक्शनल ग्रुप याद रखिएगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं। ये एल्डिहाइड है, इसमें C डबल बॉन्ड O और H लगता है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगेगा कीटोन में, कार्बोक्सिलिक में C डबल O OH। ठीक है, कीटोन का एक चीज याद रखिएगा, जो कीटोन का एटम होता है ना, जो फंक्शनल ग्रुप आता है, वो हमेशा उसका जो C डबल O है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O है, जो इसका ये वाला C है ना, ये हमेशा हर उसके आपका जो कंपाउंड है उसके सेंटर में आएगा। मतलब जैसे प्रोपेन था, प्रोपेन में सेंटर मोस्ट जो कार्बन है वो आपका कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए कीटोन के अंदर होता है। तो देखिए मैं आपको कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो सिलेबस है यूपीएससी का बहुत वास्ट है। ठीक है, और जिस लेवल्स का वो पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे, आप अगर स्पेसिफिक हो रहे हो ना कि मैं तो ये पढ़ूंगा ये नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये पूछता नहीं यूपीएससी, तो देन यू गोइंग रॉन्ग। यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। ओके, सो यू नीड टू बी रेडी अबाउट दैट, रेडी फॉर दैट। सो लेट्स सी व्हाट आर होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज आर जस्ट सक्सेसिव ग्रुप ऑफ कार्बन्स। ओके, सक्सेसिव ग्रुप, बाय सक्सेसिव ग्रुप ऑफ कार्बन्स मेरा मतलब क्या है, जैसे सपोज करिए फर्स्ट अगर हम मिथेन की बात करते हैं, मिथेन इज CH4 एंड व्हाट इज इथेन, इट इज C2H6, व्हाट इज प्रोपेन C3H8। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे ना, तो हर एक एल्केन में, मैं हर एक एल्केन की बात कर रहा हूँ, व्हाट आर एल्केन्स, एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, सिंगल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड होते हैं एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं एल्काइंस। एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, सो इफ यू वॉच दिस केयरफुली, CH4 और C2H6 के अंदर क्या डिफरेंस है, एक इसमें कार्बन एक्स्ट्रा है और 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर एक सक्सेसिव मतलब क्या है, एक के बाद एक, जो नेक्स्ट सीरीज होगी ना होमोलोगस सीरीज, कार्बन की जो सीरीज होगी, उसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा होगा और 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होंगे। इसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए किसी भी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है, वो बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वैसे तो जनरल कंसेप्शन है, कोई इतना मतलब बहुत डीप चीज नहीं है जिसको जिसको आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, मतलब अगर सिंगल बॉन्ड बन रही तो एल्केन है, डबल बॉन्ड कहीं पे, अगर कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो एल्कीन है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एल्काइन है। ओके, अगर फंक्शनल ग्रुप लग रहा है तो फंक्शनल ग्रुप लगेगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, कैसे होगा मैं बता दूंगा आपको भी। ठीक है, अब देखिए जितने भी एल्केन होते हैं ना, उनका एक जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे हम कहते हैं CN। चलिए नेक्स्ट पेज पे हमको रेफरेंस दिखाता हूँ, उसके बाद ही देखिए ये रहा आपका फॉर्मूला। ठीक है, जो एल्केन्स है उनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अब सपोज करिए अगर एक कार्बन का एटम है तो n की जगह 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C1H2n। 2n मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 2। ठीक है, तो 2n+2 दैट वुड बी इक्वल टू CH4। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH4 मिथेन। अगर 2 हो जाएगा तो ये बन जाएगा C2H6। ठीक है, 3 पे C3H8, ऐसे करके सक्सेसिवली ग्रो करता जाएगा। अगर हम बात करते हैं एल्कीन्स की, जो डबल बॉन्ड होते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ओके, एंड जो एल्काइंस होते हैं उनका फॉर्मूला होता है, यहाँ मेंशन नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, वो आप बना सकते हो, इतना कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए इन्होंने मेंशन नहीं किया, CnH2n-2। तो याद रखिएगा एल्केन्स में एक्स्ट्रा 2 है, एल्कीन्स के अंदर सिर्फ फॉर्मूला है CnH2n, और एल्काइंस के अंदर CnH2n-2। ठीक है, जहां पे n क्या आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट आपको नॉमेनक्लेचर मतलब होता है नेमिंग ऑफ एनी कार्बन कंपाउंड। तो देखिए नेमिंग मैं आपको बता देता हूँ, आपको बेसिक नेमिंग की जरूरत है, ज्यादा नेमिंग में ध्यान देने की जरूरत नहीं। आपको सबसे पहले देखिए आपको काउंट करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आपके कंपाउंड के अंदर। अगर देखिए जैसे हमने पढ़ा था कि 1 है तो मिथेन बनेगा, 2 है तो इथेन बनेगा, 3 है तो प्रोपेन, 4 है ब्यूटेन एंड सो ऑन। ठीक है, अगर वो डबल बॉन्ड उसके अंदर कहीं प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे सपोज करिए मैं प्रोपेन की बात करता हूँ, प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन एटम होते हैं पर उसके अंदर कहीं पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो प्रोपेन प्रोपेन नहीं बनेगा। ठीक है, जो प्रोपेन का एन ही लास्ट के 3 वर्ड्स है ना, एन, ये बताता है एल्केन ग्रुप का। ठीक है, तो वो जो एन है वो चेंज हो जाएगा इन में, मतलब वो बन जाएगा प्रोपीन, PROPENE।
ये जो ENE है ना, ये दिखा रहा है एल्कीन को। अगर वहीं पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो बन जाएगा एल्काइन, YNE लास्ट में जुड़ जाएगा YNE, ठीक है। तो ये ऐसे नेमिंग होती है। अब अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे देखिए इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। अब देखिए कार्बन कितने हैं इसमें, 3 कार्बन है, तो ये प्रोपेन है, सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन ही बनेगा, प्रोपेन नहीं बनेगा, ठीक है। बस इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, फंक्शनल क्लोरीन है ना, तो उसकी नेमिंग होगी क्लोरीन, सॉरी क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। क्लोरो मतलब क्लोरीन लगा है इसके अंदर, ठीक है, और प्रोपेन क्यों लगा है, क्योंकि 3 कार्बन एटम थे और सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए एन लगा है, ठीक है। वैसे ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमोप्रोपेन। अब देखिए यहाँ लगा है हमारा एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है, OH। तो देखिए सबसे पहले कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ही है। लास्ट में कार्बन के लिए जो सफिक्स होता है ना, उसको वो लगता है OL, ठीक है। तो प्रोपेन की जगह ना लास्ट के 3 वर्ड को आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। जो आपका ए नहीं था उसमें से ई हट जाएगा, ई की जगह क्या आ जाएगा, OL आ जाएगा, ठीक है, प्रोपेनॉल बन जाएगा। अब देखिए एल्डिहाइड का क्या सफिक्स होता है, AL, उसमें भी क्या है, लास्ट का आपका एक आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे, सी डबल बॉन्ड O से, सॉरी सी डबल बॉन्ड C से, ठीक है। तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रोपेनल, ठीक है। नेक्स्ट आपका बनता है प्रोपेनोन। मैंने आपको बताया था कीटोनिक ग्रुप सेंटर में आता है, तो ये आएगा आपका सेंटर में कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। कीटोन का सफिक्स होता है ओन, तो ये बन जाएगा प्रोपेनोन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक का हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आपने लगा दिया फंक्शनल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड O एंड OH। तो इस तरह से इसकी नेमिंग होती है, इसे हम नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। इसको आप एक बार पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए, और फिर देखिए आपको कोई डाउट आ रहा है नहीं आ रहा। अगर डाउट आ रहा है तो हम देखते हैं आगे, अगर डाउट नहीं आ रहा तो विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो सभी का याद रखिएगा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और उसके सफिक्स क्या होते हैं। नेक्स्ट देखिए कंबशन। कंबशन बहुत ही जनरल फॉर्मूला, जनरल सा फिनोमिना है। मैं देखो आपको इस चैप्टर स्पेसिफिक बताऊंगा, क्योंकि कंबशन मेरे ख्याल से सबको पता है क्या होता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ एनीथिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर और स्पेसिफिकली से ऑक्सीजन टू गिव हीट एंड लाइट, ठीक है। तो जहां भी हीट एंड लाइट एमिट हो रही है वो कंबशन है। हम अगर बात करते हैं तो कार्बन की बात करेंगे यहाँ पे। कार्बन अपने किसी भी एलोट्रोपिक फॉर्म में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, जल के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, क्योंकि कार्बन का कंपाउंड है, और साथ में हीट और लाइट रिलीज करेगा, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर में जो जरूरी चीज है वो मैं बताता हूँ आपको, कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, वो क्या है, वो जब भी जलेंगे तो वो क्लीन फ्लेम देंगे, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड है वो जलेंगे तो येलो फ्लेम देंगे विद लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक। सपोज कैंडल आपका वुड है, ठीक है, ये सब, सॉरी वुड का फ्लेम नहीं देता जनरली, ठीक है, इनिशियली देता है, बट जिस वुड में फ्लेम देख रही है आपको, वो आपका अनसैचुरेटेड कार्बन बन हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा सैचुरेटेड क्या देगा आपको, क्लीन फ्लेम, अनसैचुरेटेड आपको क्या देगा, येलो फ्लेम, ठीक है। ये येलो फ्लेम क्या दिखाता है, पार्शियल कंबशन। जो क्लीन फ्लेम है वो बताता है कि आपका जो कंबशन है फुल हुआ है, आपका फ्यूल वहां पे वेस्ट नहीं हुआ है। अनसैचुरेटेड के केस में आपका जो फ्यूल है वेस्ट हो रहा है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड देखिए, वाई डू सम सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट फ्लेम। देखिए जिस भी सब्सटेंस के अंदर ना वेपर्स होंगे, गैसेस होंगी, वो हमेशा फ्लेम के साथ बर्न करेगा। जिसके अंदर नहीं होंगे, ठीक है, जैसे सपोज करिए कोल है, चारकोल है, ठीक है, इनके अंदर वोलेटाइल सब्सटेंस जो भी है ना, वो आपके वेपराइज हो जाए। अगर वो वेपराइज हो रहे हैं तो वो स्टार्टिंग में फ्लेम के साथ बर्न करेंगे, फिर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जितनी भी गैसेज आपके, जैसे कि आपकी होम गैस होती है LPG CNG, ये जब बर्न करती है तो फ्लेम के साथ बर्न करती है, पर वहीं पे आपका जो कोल है, चारकोल है, ये आपके कभी भी फ्लेम के साथ बर्न नहीं करते, ठीक है। तो उसका रीजन यही है कि जो गैसेज हैं वो जनरली जब बर्न करती हैं तो फ्लेम के साथ बर्न करती हैं, क्योंकि उनके अंदर वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं। इनके वोलेटाइल कंपोनेंट उड़ जाते हैं, इसलिए ये फ्लेम के बिना ही बर्न करते हैं, ठीक है। जो देखिए बिना फ्लेम के बर्न करेगा वो पोल्यूशन ज्यादा करेगा, ये चीज भी याद रखिएगा। और जो फ्लेम के साथ बर्न करेगा, क्लीन फ्लेम के साथ, वो उतना ही कम पोल्यूशन करेगा। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम को पता है कि कोल एंड पेट्रोलियम जब अंडर हाई प्रेशर कोई चीज रखते हैं हम फॉर बैलेंस ऑफ ईयर्स, तो वो चेंज होती है। उनके जो फॉसिल्स होते हैं वो फॉसिल्स चेंज होते हैं किसमें, फॉसिल फ्यूल में, जिसको हम बाद में एक्सट्रैक्ट करके कोल पेट्रोलियम निकालते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, किसी भी चीज का ऑक्सीडाइज होना, ऑक्सीजन का एडिशन होना, वो ऑक्सीडेशन होता है। इसमें हम कार्बन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, जैसे ये कंपाउंड था, इसको हम इथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका बर्न हुआ, ठीक है, बर्न होके एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में बर्न हुआ, ठीक है। और ये बन के क्या बन गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इन्होंने देखो यहाँ पे आपके मतलब वो कुछ भी नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। कुछ आपके जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल निभाते हैं, मतलब वो खुद को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन। देखिए एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे या फिर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड करेंगे। देखिए जैसे ये आपका कार्बन था, कार्बन का ग्रुप था कोई भी, ठीक है, इसके अंदर आपके पास देखिए 4 साथ में सपोज करिए 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है।
तो ये 4 लगे इसलिए बीच में एक डबल बॉन्ड थी ताकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो पाए। अगर हम कैसे भी करके एक और हाइड्रोजन ऐड करा पा रहे हैं, ठीक है, या फिर एक फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, तो ये अभी सिंगल बॉन्ड बन गया। पहले ये अनसैचुरेटेड था और ये निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस और हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। ठीक है, तो पहली बात आपको क्या याद रखना है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन बनते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट करते हैं। ठीक है, जैसे पैलेडियम हो गया, निकल हो गया। नेक्स्ट देखिए, जो इसमें याद रखने वाली चीज है कि जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं ना आपके, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स किसमें मिलते हैं, आपके वेजिटेबल्स ऑयल्स में। ठीक है, जो एनिमल फैट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जैसे कि घी हो गया आपका। ठीक है, वो आपके कुकिंग के लिए हेल्दी नहीं होते, क्योंकि सैचुरेटेड फैट आपने सुना होगा कि आपकी बॉडी में आके सैचुरेट हो जाते हैं, जम जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट स्ट्रोक के चांसेस होते हैं और भी कई बीमारियां बनती हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जल्दी आपकी बॉडी में रिएक्ट करके आपकी बॉडी से जल्दी आउट हो जाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और जल्दी आउट निकल जाते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट्स आर मच हेल्दियर देन saturated fats, so you should also consume unsaturated fats. Next is substitution reaction. So what is substitution reaction? As you all know, substitute करने का मतलब होता है किसी एक की जगह किसी और को डालना। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए ये मीथेन था, इसमें हमने एक क्लोरीन ऐड किया, तो अब एक क्लोरीन ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन गायब हो गया। पहले 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन गायब हो गया। ठीक है, और उसकी जगह ले लिए क्लोरीन ने। फिर हम क्या करेंगे, एक और हाइड्रोजन को गायब करेंगे, एक और क्लोरीन कर देंगे, फिर एक और को करेंगे, फिर एक और करेंगे। मतलब ऐसे हम करके इस प्रोसेस में हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे। ठीक है, ये अब काम कहाँ पे आता है, देखिए पहली बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम जनरली क्लोरीन को यूज करते हैं। ठीक है, और इससे हम नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं जो आपकी आगे फर्दर हेल्प करते हैं डेली यूसेज में। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि सब्स्टिट्यूशन में क्या यूज किया जाता है। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, याद रखना है। इथेनॉल फर्स्ट, इथेनॉल इज जनरली अल्कोहल। ठीक है, जो आप लोग सबको पता है जनरली अल्कोहल क्या होता है। ठीक है, इथेनॉल ये अल्कोहल कंजप्शन के लिए यूज किया जाता है, हालांकि ये हार्मफुल होता है, फिर भी लोग बताते हैं, सॉरी फिर भी लोग यूज करते हैं। इसके अलावा देखो इसको हम मेडिसिन में यूज करते हैं, जैसे कफ सिरप हो गया। ठीक है, उसे हम बोलते हैं टिंचर आयोडीन। याद रखिएगा, टिंचर आयोडीन क्या होता है, ये आयोडीन का और अल्कोहल का मिक्सचर होता है और वाटर उसमें सॉल्वेंट होता है। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल होता है इथेनॉल, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी कंजप्शन से क्या होता है, डायलेट इथेनॉल की आपको ड्रंकनेस लगेगी, मतलब कि डिजी फील करोगे, पर फिर भी लोग इसको यूज करते हैं एंड दैट शुड नॉट बी यूज्ड एंड प्रमोटेड। ठीक है, और लॉन्ग टर्म इसका यूज बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम भी कर सकता है, और अगर आप प्योर क्वांटिटी में इथेनॉल लेते हो तो बहुत ही हार्मफुल रह सकता है, बहुत ही लीथल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको टिंचर ऑफ आयोडीन याद रखना है क्या होता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, जस्ट अ सेकंड। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका जो जरूरी है वो है डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, देखिए इथेनॉल का यूज मतलब बताया था गलत है, पर फिर भी लोग यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इथेनॉल के अंदर कंपोनेंट मिक्स करते हैं मेथनॉल। मेथनॉल इज हाईली डेंजरस कंपोनेंट। उसका अगर आप मतलब जस्ट ड्रॉप्स भी कंज्यूम करते हो तो दैट कुड लीड टू डेथ, बिकॉज वो क्या करता है आपके बॉडी में जाके कोगुलेशन स्टार्ट करता है लिवर के अंदर जाके। ठीक है, मिथेनॉल बॉडी में जाके आपके मिथेनॉल, मतलब देखिए मिथेनॉल में क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है, और मिथेनॉल में क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। बॉडी में जाके आपकी ऑक्सीडाइज होकर मिथेनॉल बन जाएगा। मिथेनॉल है वो क्या करता है, आपकी बॉडी में जाके सेल्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको कोगुलेट करने लग जाएगा। जैसे आपका एग कोगुलेट होता है ना जब आप कुक करते हो, उसको भुजिया बनाते हो, ठीक है, तो वैसे ही कोगुलेट करने लग जाएगा, बॉडी पार्ट सिकुड़ने लग जाएंगे एंड इट कुड लीड टू सडन डेथ। तो इसीलिए इसके यूज को रोकने के लिए, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्रियल चीजों में हम इथेनॉल का यूज करते हैं, जैसे सैनिटाइजर्स में यूज करते हैं, फ्लूइड्स में यूज करते हैं, कफ सिरप्स में यूज करते हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें मेथनॉल ऐड करते हैं। ठीक है, मेथनॉल यूज करते हैं, और कई जगह आपने देखा भी होगा कि जिन कंपोनेंट्स के अंदर अल्कोहल के अंदर मेथनॉल एडेड होता है उसके अंदर हम डाइज यूज करते हैं। ठीक है, जिससे अल्कोहल ब्लू कलर का दिखता है, उसको हम डीनेचर्ड अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट इज इथेनॉइक एसिड? इथेनॉइक एसिड इज नथिंग बट जस्ट इथेनॉल विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज विनेगर। ये याद रखना है आपको, 5 to 8% याद रखिएगा। ठीक है, एसिटिक एसिड का 5 to 8% अगर आप वाटर में डालते हो दैट इज विनेगर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है ईस्टरिफिकेशन। व्हाट इज ईस्टरिफिकेशन? देखिए ये रिएक्शन बहुत जरूरी है। ये ईस्टरिफिकेशन यूज होता है आपका सोप की इंडस्ट्री में, शैम्पू की इंडस्ट्री में, परफ्यूम्स की इंडस्ट्री में यूज होता है। जो भी आपके स्मेल गिविंग चीजें होती है ना, ईस्टर इज जनरली अ स्वीट स्मेलिंग कंपोनेंट, जो आपके सोप्स में, परफ्यूम्स में, शैम्पूज के अंदर भी डाला जाता है। ठीक है, तो बनता है कैसे, एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब इथेनॉइक हो गया, ठीक है, और एक आपका एल्कोहलिक ग्रुप इथेनॉल। ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये जो आपका सेंटर में चीज बन रही है ना, इसको हम ईस्टर कहते हैं। ठीक है, और इसी ईस्टर को अगर आप किसी बेस के साथ या फिर किसी एल्कली के साथ रिएक्ट कराओगे तो फिर से ये ईस्टर
कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में और इथेनिक एसिड में, ठीक है। इसी को हम एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए सोप्स की डेफिनेशन याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर सोप्स? सोप्स आर सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सोडियम या पोटेशियम की सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स आर नथिंग जस्ट अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड अ बेस, ठीक है। उनकी लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, मतलब लॉन्ग चेन पोटेशियम और सोडियम की सॉल्ट्स होंगे और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें मिला होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज सोप्स एंड डिटर्जेंट। देखिए सोप्स आर जनरली नथिंग बट सोडियम, और मैंने आपको जैसे बताया था, हमने पढ़ा था कि वो सोप्स क्या होते हैं, सोडियम या फिर पोटेशियम की लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। तो देखिए इसके दो पार्ट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। जो फर्स्ट पार्ट ऊपर वाला पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये जो सोडियम वाला पार्ट होता है, ये आपका हाइड्रोफिलिक एंड होता है, ये आपका हाइड्रोफोबिक। जो टेल है वो आपकी हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब डरना, फिलिक मतलब लव, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाटर लविंग होता है, ये नीचे वाला पार्ट वाटर से भागता दूर। तो देखिए जैसे ये डर्ट का पीस था, ठीक है, हमने सोप डाला इसके अंदर, तो हाइड्रोफिलिक एंड इसके अंदर जाएगा और हाइड्रोफोबिक एंड से दूर भागेगा। तो फिलिक एंड क्या है, वो इसके अंदर डिजोल्व होने की कोशिश करेगा, ठीक है। सपोज करें ग्रीस डर्ट जो भी चीज थी इसके अंदर डिजोल्व होने की या फिर इसके साथ मिलने की कोशिश करेगा, ये अंदर जाएगा। जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो इससे दूर भागेगा, ठीक है। तो जैसे ये अंदर गया, इसके अंदर जाके फोबिक एंड ने पीछे को प्रेशर मारा इसको निकालने के लिए, तो ये जितने भी मिशल्स होते हैं, इसको हम मिशल्स बोलते हैं, ये मिशल सारे बाहर निकलेंगे ग्रीस और डर्ट को साथ लेके, ठीक है। सो दिस इज हाउ क्लींजिंग प्रोसेस इज डन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन होती है, सोडियम पोटेशियम होता है, जो हेड होता है वो वाटर लविंग होता है, और जो टेल होती है वो वाटर से होती है, ठीक है। ये होगा आपका मिशल्स का। इसके अलावा देखिए आपको और क्या याद रखना है, देखिए द मिशल्स, जो आपके मिशल्स होते हैं ना सोल्यूशन में कलर्ड की तरह रहते हैं। जो कलर्ड होता है वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है। टिंडल इफेक्ट किसकी वजह से दिखाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। तो याद रखिएगा द सोप मिशल्स, सोप के जो मिशल्स होते हैं उनका साइज इतना बड़ा होता है कि वो लाइट को स्कैटर कर सकें, और इसी की वजह से वो क्लाउडी दिखते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। जस्ट देखिए टिंचर ऑफ आयोडीन, सॉरी पहले ही देख लेते हैं ये क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? एल्केन्स। अभी मैंने बताया था ना, सैचुरेटेड एल्केन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड एल्कीन्स एंड एल्काइंस होते हैं। तो सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2, ठीक है। एल्कीन्स का क्या है? CnH2n, और एल्काइंस का क्या है? CnH2n-2, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा सर। आगे चलते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन इज एन एंटीसेप्टिक फॉर फ्रेश वाउंड, सभी पढ़ा था हमने। इट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एलिमेंटल आयोडीन, ओके। इट डज नॉट कंटेन, इसके अंदर सॉरी टिंचर ऑफ आयोडीन के अंदर क्या नहीं होता? देखिए वाटर होता है, मैंने आपको बताया था, वाटर एज अ सॉल्वेंट उसमें डाला जाता है, ठीक है। अल्कोहल भी होता है, क्योंकि मैंने बताया था अल्कोहल हम मिक्स करते हैं ताकि वो एंटीसेप्टिक की तरह काम करे। पोटेशियम आयोडाइड होता है क्योंकि आयोडीन आयोडाइड से ही बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या नहीं है? एसीटोन नहीं होता, ठीक है। एसीटोन भी अल्कोहल का ही कंपोनेंट होता है, बट इसके अंदर नहीं डाला था। एसीटोन बहुत वॉलेटाइल होता है, अगर आप इसको यूज करोगे तो वुंड के ऊपर रुकेगा नहीं, जल्दी से उड़ जाएगा। वॉलेटाइल मतलब जो जल्दी उड़ जाए, ठीक है। एसीटोन उसके अंदर नहीं होता। अगर आपने ये पैराग्राफ मेरे साथ ध्यान से पढ़ा होगा टिंचर ऑफ आयोडीन वाला, तो आप इसको आंसर कर पाओगे। चलो आगे चलते हैं। सोप सोल्यूशन यूज्ड फॉर क्लींजिंग पर्पस अपीयर्स क्लाउडी, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप मिशल्स कैन, अभी हमने पढ़ा था कि सोप सोल्यूशन वो क्लाउडी दिखता है। किसकी वजह से दिखता है? कि सोप मिशल्स जो होते हैं ना, उनका साइज इतना बड़ा होता है कि वो लाइट को स्कैटर कर सके, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ओके। देखिए पढ़ा था ना कि सोप मिशल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट, हैंस सोप सोल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी, ठीक है। तो दिस वाज द आंसर टू दैट क्वेश्चन। मेजर पार्ट हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, देख लेते हैं कुछ बचा तो। लास्ट हमारा बस ये बचा है, डिटर्जेंट का पार्ट बचा। तो व्हाट आर डिटर्जेंट? डिटर्जेंट जस्ट डिटर्जेंट कुछ नहीं होता, ये भी लॉन्ग चेन्स होती हैं। किसकी? सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम साल्ट्स विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइड साइन, ठीक है। अब देखिए इसका यूज क्यों होता है? इसका यूज इसलिए होता है कि जो सोप्स होते हैं वो आपके हार्ड वाटर में वर्क नहीं करते। हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर वो पानी होता है जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, उसमें फोम नहीं बनता, खारा पानी से कहते हैं, ठीक है। उसमें फोम नहीं बनता, झाग नहीं बनते, इसलिए वो क्लीन नहीं कर पाता है। तो ऐसे में डिटर्जेंट्स काम आ पाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है डिटर्जेंट हार्ड वाटर में काम आते हैं। किसके बनते हैं? सल्फोनिक एसिड या फिर अमोनिक एसिड, सॉरी अमोनिक सॉल्ट विद क्लोराइड और ब्रोमाइड, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। Hope you have understood this chapter, and in case you haven't understood this chapter, you can contact me directly, or you can contact on our channel. You can join our channel and you can tell us on our channel. So this was all about this chapter. Hope you have understood that and this chapter, and I wish you all the best for coming journey in this preparation, and thank you so much.